Namaskaram and hello everyone. Welcome to Maitri. I thank each one of you for subscribing to our channel and making it reach 500 subscriptions. Thank you very much. On this occasion, we have already promised you to bring more information related to health, wellness and prevention of the diseases by experts from different parts of India and of course abroad. As a part of this, I would like to introduce a naturopathy and yoga expert with 20 years and more experience in the field. He is an expert in yoga. He is a Reiki Grandmaster of level 12 and advanced pranic healer too. After graduating from SDM College of Naturopathy and Yogic Sciences, South Karnataka, he started his journey in Bengaluru at Prakruti Kendra. From the year 2000 to 2004, he worked there as a Chief Medical Officer and lecturer. From the year 2004 to 2010, he worked as a principal and professor in Mahavir College of Naturopathy and Yogic Sciences, Durg, Chhattisgarh. He also worked in Sant Hirdaram Naturopathy College as a lecturer and senior medical officer from the year 2010 to 2014. Later, he worked in Jindal Nature Cure Institute as a medical officer till 2017. He also worked as a Chief Medical Officer at Tara Wellness Center and Yoga, Ratanveer Nature Cure Center and Wellness Center, Kutch, Gujarat. Currently, he is working as a project consultant and Chief Medical Officer at Vedic Wellness Center, Meerut, since 2018. So the list is very long. We are really very happy that he has humbly accepted our request to share his wonderful knowledge with our viewers. Trust me, he is a treasure of knowledge. So I am really happy to introduce Dr. Santosh Kumar Pandey. Dr. Santosh Kumar Pandey will be speaking to us both in Hindi and English. जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हिंदी जानते हैं और तेलुगु और इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए खासकर हम ये टॉक्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप इसका फ़ायदा उठाएं. सो ज़रूर इनको सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लाभ उठा सके. जो हमारे हिंदी व्यूअर्स जो भी है, डॉक्टर साहब के बात अच्छी तरह से सुनिएगा. उनका नॉलेज बहुत ही बढ़िया है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है. उनका 20 साल का जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, ये सुनने से कुछ नहीं होता है. आप इनके बात सुन के आप और आपके फैमिली मेम्बर सभी लोग इनका बात को फॉलो करना शुरू कीजिएगा ताकि आप और भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं. आई वंस अगेन थैंक ऑल ऑफ यू for subscribing to our channel so that you will be exposed to more and more number of doctors in future. I wholeheartedly thank Dr. Santosh Kumar Pandey for accepting our request to share his wonderful knowledge. Thank you very much and now over to Dr. Santosh Kumar Pandey. दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू योगा एंड नेचुरोपैथी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ का या डिजीज़ का, वो क्या है. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हेल्थ का. हेल्थ या स्वास्थ्य, हम सभी लोग कोशिश में हैं कि हेल्थ हमारा इम्प्रूव हो जाए, हमें कोई बीमारी ना हो. उसके लिए हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं. लेकिन योग और नेचुरोपैथी के अनुसार हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ वेलबींग. एक स्टेट है वेलबींग का एट फिज़िकल लेवल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे. तो ये एक ऐसा बैलेंस है योग के और नेचुरोपैथी के अनुसार, जहाँ पर आपका फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल में एक बैलेंस. अगर ये सारे लेवल्स बैलेंस में हैं तो आप कह सकते हैं कि आप हेल्दी हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है. तो हमारे योग में और नेचुरोपैथी में हम ये मानते हैं कि केवल आपका फिज़िकल हेल्थ या केवल आपका मेंटल हेल्थ या केवल आपका सोशल इमोशनल हेल्थ ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका स्पिरिचुअल हेल्थ है. अगर आप स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं हैं तो भी आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते. यानी कि अगर आप बॉडी बना लेते हैं फिज़िकली बट मेंटली आप फिट नहीं हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं. इस पर्टिकुलर साइंस में, योगा और नेचुरोपैथी में सभी चीज़ों को, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया.
अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है डिजीज़। अब डिजीज़ क्या चीज़ है? डिसईज़ यानी कि डिस्कम्फर्ट। आप अपने कंफर्ट जोन से जैसे हटते हैं और वो आपको डिस्कम्फर्ट देता है तो वो डिजीज़ है, डिसईज़। आप ईज़ में नहीं हैं, आप नॉर्मल नहीं हैं, तो वो कंडीशन जहाँ पर आप एबनॉर्मल हो जाते हैं अपने नॉर्मल हेल्थ से, वो डिजीज़ का कंडीशन है। अब डिजीज़ को अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेजेस में हम समझ सकते हैं। बहुत सारे स्कूल के बहुत सारे अपने अपने टेक्निक्स और समझाने के तरीके हैं, बट सबसे सिंपल तरीका ये है कि कोई भी डिजीज़ जब शुरू होता है तो एक्यूट कंडीशन में होता है। तो एक्यूट कंडीशन जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कफ कोल्ड हुआ, ये एक्यूट कंडीशन है। उसको हमने सप्रेस कर दिया, सप्रेस करते गए तो क्रॉनिक बन गया, और ज़्यादा सप्रेस किए तो डिजेनरेटिव हो गया, और ज़्यादा सप्रेस किया हमने तो फेटल हो गया, जानलेवा बन सकता है। तो एक्यूट कंडीशन को हमको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्यूट कंडीशन क्या है? आपका बॉडी जब अपने आप को हील कर रही होती है तो उस कंडीशन में एक्यूट सिम्टम्स होते हैं। जैसे कफ कोल्ड फीवर वगैरह जो होता है वो एक एक्यूट कंडीशन है जहाँ पर बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है, अपने आप को ट्रीट कर रही होती है बॉडी आपकी। तो इसलिए हमको शरीर को उस समय सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो योगिक प्रैक्टिसेस से हो, चाहे वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से हो, लेकिन हमें उस समय सपोर्ट करना है ताकि ये प्रोसेस डिजेनरेटिव या क्रॉनिक स्टेज या ब्रोंकियल अस्थमा या और ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी इस समय हमसे क्या चाहती है, क्योंकि बॉडी का डिमांड कुछ और है और आप उसको सप्रेस करके कुछ और बना देते हैं और फिर आगे चल के वो दिक्कत आपको बढ़ जाती है। तो ये स्टेजेस हैं डिजीज़ के, और अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी डिजीज़ होने के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण जो है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर इनसाइड द बॉडी और मॉर्बिड मैटर। शरीर में या तो आप ये समझ लीजिए कि कोई कचरा भरा हुआ है शरीर के अंदर, या विजातीय द्रव्य जिसको कहा जाता है, अगर ये शरीर में जमता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो क्या होगा कि आपके ब्लड एंड लिम्फ का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड एंड लिम्फ का कॉम्पोजिशन चेंज होगा, आपकी वाइटैलिटी, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, और जब आप इम्यून सिस्टम आपका डाउन होता है तभी बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आप पे अटैक कर सकते हैं, बीमार आप पड़ सकते हैं। अगर ये कचरा ही अंदर ना हो तो ब्लड एंड लिम्फ बिल्कुल ठीक रहेगा और इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। और इम्यून सिस्टम अगर बहुत अच्छा रहा तो किसी भी हालत में आप बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकता। तो इसलिए नेचुरोपैथी में बहुत इम्पॉर्टेंट हम इस बात को समझते हैं कि शरीर का प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। शरीर प्यूरिफाई कर देते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो जाए, और जब इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो जाता है तो आप किसी भी बीमारी में, किसी भी बीमारी से, किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं अंदर। तो ये हो गया नेचुरोपैथी के अनुसार बीमारी होने का कारण। अब योग के कारण, जैसे योग के अनुसार अगर बीमार आप पड़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण जो है इम्बैलेंस इन पंच महाभूतास। तो जो सांख्य आपको बताता है कि पंच महाभूतों से शरीर बना है, 25-26 तत्व जो बने हैं, शरीर है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो जब भी इन पंच महाभूतों में इम्बैलेंस होता है, जब भी इम्बैलेंस होगा तो आप बीमार पड़ेंगे। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, अलग अलग एरियाज़ में फ्लो कर रही हैं, और जब भी इन नाड़ियों में इम्बैलेंस होगा तब आप बीमार पड़ेंगे। चक्रों में इम्बैलेंस होगा तब आप बीमार पड़ेंगे। तो योग के अनुसार ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी इन नाड़ियों में इम्बैलेंस होगा या ब्लॉकेजेस होंगे या प्राण फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा तब हम बीमार पड़ेंगे। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इन नाड़ियों को साफ स्वच्छ रखें, प्रैक्टिसेस जो भी योगिक प्रैक्टिसेस हैं उनको करके। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ योग के अनुसार, अगर आपके पंच कोशों में इम्बैलेंस है, अगर आपके जो पंच कोश हैं उसमें ही मान लीजिए फिजिकल आपका मनोमय कोश इम्बैलेंस के स्टेट में है और आपका प्राणमय कोश इम्बैलेंस के स्टेट में है, तो आपका अन्नमय कोश इम्बैलेंस ही रहेगा, कभी भी नॉर्मल नहीं रह सकता। तो योग के अनुसार भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये तीनों पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किया, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम ठीक से समझें और अपने हेल्थ को बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि
हेल्थ ही एक ऐसा वेल्थ है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। बाकी सारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं, लेकिन आपका हेल्थ आपके पास ही रहेगा, वो कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकता। अगर आपने मेहनत की है तो 100% आपका हेल्थ आपके पास रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए। नमस्कार।